अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ एक बहुत प्यारी मेहमान है सिद्रा जमील, जो कि फाउंडर है सोल सिस्टर्स यूएसए की, द बिगेस्ट साउथ एशियन women सपोर्ट ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, which is 34,000 women strong. Sidra holds bachelor's and a master's from Hamdard University in Pakistan, and now she earned her second MBA from New York University Stern. She sits on the board of an NJ-based nonprofit Women to Women and also is the program director of their flagship project, Shazori House. Assalamu alaikum. Welcome to the show, Sidra. Assalamu alaikum. Thank you very much for having me. Thank you so much for joining. Your resume is such a big and vibrant one कि मुझे अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लोर करना है. No worries. तो No worries. I'm comfortable. सोल सिस्टर्स, आपको ये आइडिया कैसे आया या आपने कैसे स्टार्ट किया? आइडिया ऐसे आया कि I've been in the United States for almost a decade. तो जब नए नए आए थे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी और कोई ऐसा भी नहीं था कि जो रास्ता दिखा सके. And you don't see familiar faces, so that actually gives a lot of बहुत आप अंदर से कमजोर फील करते हैं कि हम कहाँ आ गए, अपनों को छोड़कर आ गए. Everybody is 7,000 miles away. आपका सारा सपोर्ट सिस्टम, so यहाँ पे you don't know your neighbors. बिल्कुल. आपको आप मॉल जा रहे हैं तो you don't see familiar faces. It's इक्का दुक्का कोई आपको दिख गया तो दिख गया. And then there's this hesitation कि should I go say salam? Are they even Muslim? Are they even from Pakistan? Am I doubting them for some other nationality? So things of that nature. It kind of puts you in a spot where you're feeling so insecure in yourself कि आप कहाँ जाएं, किससे पूछें कि फला जगह कैसे जाते हैं, मैं जॉब कैसे अप्लाई करूं, अच्छा ऑनलाइन अप्लाई करूं. बट दैट्स नॉट जस्ट इट. सो द आइडिया वाज टू create a support system and provide support in helping women navigate in foreign lands. This is a foreign land for most of us. I'm an immigrant. And when I came to this country, I did not even know which side of the platform to get off on. Like it took me some time. I remember how many times I've missed my trains, how many times I've lost my metro card or lost something. And I remember 34th Street, Herald Square. I was stranded. I lost my first ever metro card जो मेरे मियाँ ने उस वक्त दिलाया था. $110 का था और जब वो खोया तो मुझे अच्छी तरह याद है आज के दिन भी. And I remember these moments because they keep me grounded even to this date. कि मैं एक दीवार के साथ लग कर ना मैं नीचे बैठ गई थी और मैं I was shivering and I had my hands like this and I had just curled up on the floor and I was thinking to myself, what is going to happen when I go home and I'm going to tell my husband कि मैंने $100 का metro card खो दिया. I know. There is no I wouldn't say कि उस वक्त $100 की वैल्यू इतना नहीं पता, इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है. आज when I look back I'm like मैं $100 के लिए परेशान हो रही थी. But then all those moments, they make you who you are today. And I think there is no part of my journey that I would ever think was unneeded. I think Allah Ta'ala put me through whatever times have been in my life to make me the person that I am. So the idea was of creating Soul Sisters was that I wanted to do anything and everything in my power, even to this day, to help anybody, चाहे वो मेरे neighbors हो, चाहे वो मेरे office की कोई दोस्त हो, चाहे वो गोरी हो या चाहे वो पाकिस्तानी हो, non-पाकिस्तानी हो, it does not matter. सिद्रा, वेरी इंटरेस्टिंग. और आपको पता है कि ये जो आप एक्सप्रेस कर रही हैं, ये ऐसी एलियनेटेड चीज नहीं है. जब हम सब आते हैं तो हम इसी तरह के इसको कल्चरल शॉक कह लें, इसको एक बिल्कुल सात समंदर पार की दुनिया कह लें, वो इसी तरह आपको एकदम शॉक देती है. और द प्रॉब्लम इज कि आजकल ये समझा जाता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और सोशल मीडिया के थ्रू पता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. तो इट्स वेरी एम्पावरिंग कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, नॉर्मलाइज करें, ताकि जो आपने शौक का बताया कि $100 और करेंसी चेंज, ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये बहुत देर लगती है समझने में. तो इसको बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छे तरह से एक्सप्लोर करें और इस प्लेटफॉर्म पे हम इतना इजी कर दें कि किसी को भी अगर हेल्प या सपोर्ट चाहिए हो तो उसको पता हो कि वेयर यू शुड रीच या किसको नॉक करें, एंड देयर शुड बी मटेरियल एज वेल. सो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर शेयरिंग योर जर्नी. तो व्हेन यू स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट,
How did you find it? Like, was it difficult to connect with Desi people? Yeah, women. Tell me about that journey now. That you found something that you should do, and now how to do it. Sure. So जब आप यहाँ इस मुल्क में आते हैं, आपको सबसे पहले लोग अपने नहीं दिखते हैं। और जो मैं आज भी अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि आप लोग प्लीज निकलें बाहर, अपनी लोकल मस्जिद जाइए। And that's something that I did. That's how I grew my network. Not a lot of people knew about Soul Sisters USA. And I think that is an imperative step. Go to your masjid, चाहे वो एक भी आपको नमाज मिल रही हो, यूजुअली प्रेफरेबली व्हाट आई सजेस्ट, गो फॉर मगरिब, बिकॉज वहां पे लोग जॉब के बाद आते हैं और बहुत सारे कनेक्शंस मस्जिद में बनते हैं, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, रेफरल्स के लिए हो, आपकी दोस्तियों के लिए हो, चाहे वो आप चाइल्ड केयर ढूंढ रहे हो, जब खवातीन, स्पेशली खवातीन, when they're going back to work or starting a new career over here, they need that support. Unfortunately, when we moved here, यहाँ हम इस मुल्क में जब आते हैं, हम अपने सारे अबाव अजदाद, खाला, फूफियां, चाचियां, सबको छोड़ आते हैं पीछे। हम like we don't, you know that it takes a village to raise a child. I know how hard I've struggled to raise my kids when I was over here. So जितनी मेरी mortgage थी, उतने मेरे बच्चे की, my son used to go to Goddard at the time, and उतने मैं $1,200 अपने बच्चे का डे केयर का spend करती थी, and it was just ridiculous. Like I was like, whatever I'm making, I'm like paying mortgage and paying for my son's schooling, and I have to. There's no compromise on that. Who am I working for? For my family. I don't work for myself. I work for my family. So having said that, the support that I got from the community was overwhelming. Alhamdulillah, people recognized that there was a need for it, and they wanted to be a part of such a platform जहां वो लोगों से connect कर सकें. सिद्रा, ये इतना इम्पोर्टेंट अनदर पॉइंट है जो कि जब हम अपने बैक होम से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो हम एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट में हमें शिफ्ट होना पड़ता है। पाकिस्तान में हमें कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए होती, वो हमें मोस्टली पुप्पो का घर, शादियाँ, फौदगी, स्कूल, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट यहाँ आके जैसे आपने कहा कि मस्जिद इज द प्लेस, सो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मस्जिद पाकिस्तान में हम इसको बड़ा बुनियाद परस्ती के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ आके देखा कि अमेरिका में इसका एक कम्युनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग इसके साथ रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताइए। 100% एक्सीलेंट पॉइंट। यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत मायूब समझा जाता है अगर खवातीन मस्जिद चली जाए। हमने तो बचपन में थे तो मस्जिद बड़े शौक से जाते थे, मगर after a certain age, I know I was never allowed to go to the masjid. I was like, it was an uncomprehendable concept. So when I moved to the US and people said, अच्छा मस्जिद जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, औरतें मस्जिद जाएंगी, तो थोड़ा सा it took a moment for me to understand that masjids are open to both men and women. They have separate floors. It's a very modest system that they have created, and why shouldn't we? Why shouldn't we? That's where our community comes together. That's how this society would know that yes, there is a Muslim community that exists by the numbers, because it's all a game of numbers at the end of the day. So masjid में जैसे हमारी लाफी की जो मस्जिद है, वहां पर जैसे एक गोरों का एक इवेंट होता है, सिप एंड पेंट, वाइन एंड पेंट. वी हैव सिप एंड पेंट. अब आप खवातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चे जा रहे हैं, संडे को संडे स्कूल होता है, वहां पर 3-4 घंटे का स्कूल है जहां वो उनको बाकायदा अरबी सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं. सो किड्स हु आर गोइंग टू नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स, दे देन गो टू संडे स्कूल्स, और 3-4 घंटे के लिए उनको विद इन दैट डेकोरम, वो कभी कभी बच्चे इस्लामी अपने शलवार कमीज में जाते हैं टोपी लगा के, तो एक बहुत ही उनको पता है कि उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी इज कमिंग इन टुगेदर. वही बच्चे शाम में पार्क जाके खेल रहे थे, उनको पता है कि हमारे जैसे भी लोग हैं. सो kids who are getting born and raised over here, they're already in a mixed society. So with this mixed society, their hyphenated identity needs to be very easily broken down in their own minds, so they don't fall prey to things that are going on. Exactly. I don't want this to become more of a typical discussion, so I'll hold my thoughts on that side. But I think बच्चों को अपनी identity, बच्चों को
इस्लाम से करीब रखना और हमारे पाकिस्तान से करीब रखना is extremely important for them to understand and realize where our roots are, because अगर इधर बह गए तो आप ना तीतर के रहेंगे ना बटिया के, तो वो पता चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया, वो मामला हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सिद्रा। ये हमारे लिए यहाँ अमेरिका में आके या कहीं भी हम जब बाहर चले जाते हैं अपने मुल्क से बाहर, ज़मीन से बाहर, तो जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उनमें से सबसे बड़ा हमारे बच्चों को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करना है। अब वो रूट्स जो हैं वो यहाँ आके बहुत सारे रंग और रूप धार लेती हैं। मसला ये होता है कि अगर हम रूट्स को सिर्फ रिलीजियस रखें तो एक टाइप का मसला हो जाता है। अगर हम सिर्फ कल्चरल रखें तो उसके लिए मस्जिदें जो हैं वो यहाँ एज कम्युनिटी सेंटर सर्व करती हैं, जो कि डोंट यू थिंक कि ये आइडिया बेसिकली इस्लाम में मस्जिद का आइडिया कम्युनिटी सेंटर का ही है। Yes. Probably जो हमने फॉलो या तो नहीं किया या हमें वो इतना हार्डकोर रिलीजन बताया गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So masjid is extremely important. Presence of a masjid, हमारे पास हर कम्युनिटी की अपनी यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ बच्चे न सिर्फ शाम में खेलते हैं, अपने उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं, अपनी जैसी जबान बोलने वाले, उर्दू में बात कर रहे हैं या अरबी में बात कर रहे हैं. So they also, there's a blend of communities coming together. Palestinian बच्चे हैं, Egyptian बच्चे हैं, so they're coming together. They're learning about each other's culture, which is something that I obviously was not in Pakistan, but here they get that exposure. तो जैसे शाम में बाउंसी हाउसेस लगा दिए मस्जिद में, हमारे पास क्रिकेट के मैचेस होते हैं मस्जिद के अपने, तो बच्चे उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं और उनको लगता है हमारे मौजिन जो है हमारे, वो बहुत इन्फोर्स करते हैं कि बच्चे चाहे शोर कर रहे हो आप बच्चों को जरूर लेकर आए. तो मेरे एग्जैक्टली ना दिस इज समथिंग कि जो हम सब यहाँ आके लर्न करते हैं. हमें तो ये पता था ना, स्पेशली मेरी जनरेशन को, कि बस चुप रहते हैं और बस इतना ज्यादा एहतराम करते हैं कि सीखते कुछ नहीं है, बस चुप रहते हैं. You can't do that. You can't do that. There's no learning. If you shut a child up, there's no learning. How are they going to learn? They have to see that to believe. And we don't have that culture here. तो वो उनको वही माहौल को हम जो रेप्लिकेट कर रहे हैं वो उन्हीं चंद वक्तों में, चंद औकात में है जब मस्जिद में बच्चे जा रहे हैं, तो वो एक माहौल देख रहे हैं. एंड देन ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन खवातीन की गैदरिंग्स या फैमिली की गैदरिंग्स जिसमें बच्चे देख रहे हैं कि ओ यू नो दीज आर फेलो पाकिस्तानी पीपल and things of that nature. So सिद्रा, अब इन बातों के साथ कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम, और सब कम्युनिटीज ऐसे ही करती हैं. खैर इटालियन अमेरिकन कम्युनिटी अभी तक है और इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छा कर रही होती है, साउथ अमेरिकन सब लोग कर रहे होते हैं. मुझे ये बताइए कि कुछ अभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बट उसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बैन हो रहे हैं. जैसे पैलेस्टाइन के ऊपर बात करने के ऊपर कुछ मेजर ग्रुप्स जो हैं उनको बैन या शैडो बैन कर दिया गया है. व्हाट इज योर स्टैंस ऑन इट? हाउ डू यू मैनेज दैट? आई कंप्लीटली स्टैंड विद पैलेस्टाइन एंड देयर इज नो डिनाइंग टू दैट कि वहां पर जो हो रहा है वो इंसानियत के साथ एक्सट्रीम नाइंसाफी है. तो फिर उन मुल्कों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर कि वो खामोश बैठे हैं या वो कुछ कर नहीं रहे, या वो जो पीपल इन पावर हैं दे आर नॉट मेकिंग their efforts in the right direction. Freedom of speech is being a US citizen. It is my constitutional right. However, I do not see why these groups should have been banned in the first place. Anybody should have the freedom to express and say what they wish to say. अब आप देखें जो हालात हो गए हैं, इससे कितनी families displaced होंगी. And given the fact that I already work with displaced families, like even at the time जब हमारे पास influx आया था एक अफगान refugees का 2-3 साल पहले, there came a family that had lost both their mother and father, 4 kids. And जहाँ पर जो community आई, the foster care was dividing those kids into different households. And Muslim community jumped in, and it was so hard to find that one family that could take all of those 4 kids together. So alhamdulillah, I remember being part of that whole ordeal, and it was
it was breaking all of our hearts, and it created havoc in our community, because we were pulling teeth to find people who, would take them. And for identity purposes, obviously I would not disclose, magar alhamdulillah we spread the word. We use Soul Sisters का platform ताकि लोगों को पता चले. And हमारे पास अक्सर खवातीन ऐसे पोस्ट करती हैं कि हम बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, क्या तरीका है, पाकिस्तान से यहाँ पर अडॉप्शन का क्या तरीका है, यहाँ पे अडॉप्शन का क्या तरीका. So alhamdulillah we found a home जिसमें चारों बच्चे माशाल्लाह सेट हो गए. So it just gave us such solace कि एक तकलीफ से वो गुजरे जिसका कोई अजाला नहीं कर सकता. माँ बाप दोनों का वॉर में और इस तरह के हालात में खत्म हो जाना, and then they're coming into a new country as refugees. But alhamdulillah they found a home that that took them in love, and that took them. That's so rewarding. I remember this news कि I think कि वो Soul Sisters के through ही आई थी when they asked for help. और that's why these groups are so important. ये online communities are so important that you are just one click away. And I really appreciate, or that's why we are doing this right now, कि इतना important है कि सबको किसी ने कम्युनिकेट किया तो वो हेल्प के लिए आगे आ सके. और एंड देन व्हेन वी फाउंड कि उनको घर मिल गए हैं, तो दैट वाज वन बिग अचीवमेंट. एंड हैट्स ऑफ टू यू पीपल, एंड आपके लिए स्पेशली कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो बनाते और उनके ऊपर काम करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यू आर गिविंग बैक, एंड दैट्स एन ऑनर टू हैव यू. सिद्रा, मुझे ये बताइए, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग कम्युनिटीज, मुझे ये बताइए कि हाउ ऑफन डू यू कोलैबोरेट. जैसे और ग्रुप्स होते हैं इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, और जैसे सोल सिस्टर्स पाकिस्तान है या और बड़े ग्रुप्स हैं, तो डू यू कोलैबोरेट विद देम. समटाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे पाकिस्तान में है, या इमिग्रेशन के कुछ इश्यूज होते हैं, सो डू यू कोलैबोरेट विद देम? I would love to collaborate with them. I have extended messages certain times, but we certainly do collaborate with Soul Sisters Canada, because main aur Humaira, we went to Mama Parsi together back in the day when we were in Pakistan. So there's a common element, and I completely see where she wants to proceed with her group. But ये के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ऐसे कम्युनिटी के वो रिसोर्सेज को पकड़ लें जहाँ से हम अपने जहाँ भी इशू हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. एक खातून थी, उनके बच्चे को उनके हस्बैंड एबडक्ट करके पाकिस्तान ले गए, और उनको कुछ नहीं पता कि बच्चा कहाँ है, किस जगह है. So we connected her to some people that we knew were in positions of power in Pakistan, and I personally spearheaded that whole project, I would say. And now she's alhamdulillah safe in a southern state here in the US. बच्चा आ गया यहाँ पर. US के भी बहुत सारे officials इसमें involved थे, और वो खातून आज तक उनसे कभी भी सलाम दुआ होती है तो अच्छा लगता है कि एक बेटी उनकी सेफली यहाँ पर आ गई. एंड एक माँ के लिए बच्चे की सेफ्टी से ज्यादा और बढ़ के कुछ भी नहीं है. एंड आई हैव बीन थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस माई सेल्फ, वेयर व्हेन आई मूव टू द US, मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को पीछे, नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स, आई एंडेड अप लीविंग दैट चाइल्ड. एंड मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई. और जब मैं यहाँ आई तो मुझे फोन आया उस एक्स ससुराल से कि तुम कैसी माँ हो, तुमने अपने बच्चे से नहीं मिला. तो दिल में, मतलब ऑब्वियसली मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया. दैट्स जस्ट, आई डोंट हैव अ कॉन्फ्रंटेशनल नेचर, बट इन माय हार्ट समबडी वाज ट्राइंग टू मॉम गिल्ट मी, कि मैं सोच पे मजबूर हो गई कि जब मैं वहां थी तो आपने कभी मुझे उस बच्चे से मिलने नहीं दिया, और आज जब मैं आगे बढ़ी हूँ अपनी जिंदगी में, जिसमें आपने करोड़ों ऐसे इश्यूज क्रिएट किए कि that could not bring me to where I wanted to be, and always making efforts to like somehow push me down, and I kind of navigated through all of that. And I mean, I'm nobody to come to wherever I am. It's Allah Ta'ala ने पहुंचाया मुझे जहाँ भी हूँ मैं. I think I'm nowhere. I still have a long way to go. आज भी उस बच्चे के साथ बहुत स्ट्रगल है कि वो यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता. He wants to come, but there are so many external anaasir जो इसमें शामिल हैं. तो मुझे बहुत
तकलीफ होती है और मेरा दिल बहुत कटता है Yeah, उन लोगों के exactly. लिए As जिनके mothers, बच्चे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. एक क्वेश्चन मुझे हमेशा ज़हन में आता है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक हैंडलिंग सच बिग ग्रुप्स, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और वो भी सेन रहकर करना. एंड देन देर आर सो मेनी पीपल, तो जाहिर है कि बहुत तरह के लोगों के जहन और दिमाग होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड भी होते हैं. हाउ डू यू हैंडल दैट? So thankfully, Facebook gives us admins lots of features to slow down commenting, या फिर stop commenting on a certain post. I don't have a confrontational nature to begin with, and when you're handling or managing such social media platforms, it's imperative कि आप एक ऐसे mindset के साथ आएं that encompasses everybody else's thoughts. I cannot enforce my thoughts and visions on somebody, and I have to be very accommodating. Given the position that I have to be extremely accommodating of the views and previews of what other people are feeling or saying, because it's their right. Like I mentioned अभी थोड़ी देर पहले कि freedom of speech है, बिल्कुल अपना नजरिया शेयर करें. हाँ, कोई बदकलामी ना हो. And so long as कोई बदकलामी नहीं हो रही, it's good. It's a safe place. Right. That's what we're boasting about, right? कि आप अपना purview share कीजिए, and everybody is a product of their experiences. अपनी जिंदगी में जो लोग जिस मराहिल से गुजरे हैं, वो they're a product of that, so they will share whatever they want to share, whatever they went through. It's reflective of whatever their life journey has been. So I have always been extremely accommodating के लोग अपना purview share करें. The only time where I have I would say banned people out of the group is when language gets foul, and if there is like direct kahin attacks ho rahe ho, then we would either send them warnings, and if the warnings are not handled properly, we would just so basically platform is like giving you the option to have boundaries at the same time communication. yes. और ये देखें ना कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम सब वैसे भी इवन अदरवाइज लर्न करें कि when you are stepping on somebody else's boundaries, तो that is not allowed जब आप एक common ground पे हैं. And then benefits are great benefits के जो हमें उस communication से मिल सकते हैं. बिल्कुल. Again, that's a very good feature, I would say, क्योंकि dealing with people is so hard. I'm a people's person. I think even if you put me in the toughest of spots, I will find some way to navigate. I'm just that person. Like I can see that. I can see that. ये तो इतनी मज़ेदार इंफॉर्मेशन है और बहुत ज़रूरी है ये हमारा सब प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना. लेकिन इसके साथ साथ आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी और आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. Until next episode, हम इधर यहाँ से ब्रेक लेते हैं और we will continue from here. Sure. Thank you for having me. I so appreciate it. तो हमारी ऑडियंस के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम सिद्रा के साथ थोड़ा सा डीपली डिग करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे कि ये किस तरह से ये सारे इश्यूज हैंडल भी करती हैं और अपनी जिंदगी को जो है वो इतना ऑन पॉइंट भी रखती हैं. थैंक यू सो मच सिद्रा. अभी हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे. Until next time, thank you so very much. Keep watching Pod Art with Faiza. Allah Hafiz.